Hello students, welcome to Grisha Conceptual Classes. Today we will be starting with chapter number 10, that is areas related to circles. Okay? So as the name is suggesting, we will be talking mostly about circles, right? तो सबसे पहले हम circles के बारे में, circles के लिए जो चीजें यूज होती हैं, जो कि आप सबको पता ही होगा, circumference and area of the circle. सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट थिंग वी आर टेकिंग इज सर्कमफरेंस. ठीक है. नाउ आई जस्ट ड्रॉ अ रफ सर्कल हियर. नाउ दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O. ठीक है. तो हम जब सर्कल को नेमिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम स्क्वायर को नेम कर रहे हैं, तो वी विल राइट ABCD, राइट. तो जब हम स्क्वायर सर्कल को नेम करते हैं तो वी नेम द सेंटर. We will call it a circle with center O and we will define its radius. Okay. So a circle with center O and a radius R. So now when we are talking about the circumference, we all know that circumference of a circle is 2 pi R, where pi is our either 3.14 we take or 22 by 7. These are the approximate values of the pi. So we will act accordingly. It's given in the question. If it is given that we have to use pi is equals to 3.14, then we will use 3.14. Otherwise we will be using 22 by 7 in most of the questions. Okay. So the circumference is 2 pi r, or we can also say this is equals to pi d, where d is what? D is the diameter of the circle. That is, if I am extending this straight line, so this complete length would be the diameter and r will be the radius of the circle. Okay, so r is this much only, half of diameter. So that is why 2r will make diameter, so 2 pi r or pi d, right? Now when we are talking about the area of the circle, area of circle, so we all know what is the area of circle. It is pi r square, right? This is the area of the circle, that is pi into radius का square. और if you want to write it in the form of diameter, तो हम क्या करेंगे? Radius को हम क्या लिख सकते हैं? D upon 2. So we will whole square it. So this is equals to pi d square by 4. ठीक है. So in terms of radius it is pi r square, in terms of diameter it is pi d square by 4. Now this is the area of the circle. If I am talking about semicircle, then what will happen? Semi means half, so we will divide this area by 2, simply pi r square by 2, right? सिमिलरली हम इसे भी डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाय 8. ओके, सो दिस इज द सेमी सर्कल. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वाड्रेंट, नाउ व्हाट इज अ क्वाड्रेंट? आई होप यू ऑल नो. क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ अ सर्कल, राइट? एंड सेमी सर्कल मींस हाफ ऑफ सर्कल. ठीक है. सो सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ अ सर्कल एंड क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल और हाफ ऑफ द सेमी सर्कल. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट इन दिस फिगर, सो आई एम जस्ट रबिंग इट. इफ दिस इज द सेंटर O, देन and this is the diameter AB, then this is the semicircle. ABC is a semicircle, and if I am cutting this semicircle into further half, then OCB, this thing is the quadrant. Okay, so this is the 1/4 of a circle. Alright, so इसका area क्या होगा? This will be equals to pi r square by 4, 1/4 of a circle, or 1/4 of a circle will divide by 1/4 pi d square by 60. ठीक है. So we have learned about the area of circle, the semicircle and the quadrant. Okay. Now if I am asking you, so we have circumference is equals to 2 pi r.
नाउ इफ आई एम आस्किंग यू टू फाइंड, जहां पर बहुत ज्यादा गलती होती है, टू फाइंड मी द पेरीमीटर ऑफ दिस. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेमी सर्कल, this is a semicircle of center O and this is the radius R. So if I am asking you the perimeter of this semicircle, if I am asking you, I'll write here only the perimeter. Remember I am asking you the perimeter. Then you will say what? You will say circumference is 2 pi r, तो semicircle का होगा 2 pi r upon 2. तो आप देखिए इसमें आप क्या गलती कर रहे हैं. देखो जब हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बाउंड्री लाइन, राइट. ये जो बाउंड्री लाइन, तो जब मैंने आपसे पेरीमीटर पूछा और आपने 2 पाई आर बताया, तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, दिस कर्व्ड लाइन होगी. नाउ वेयर इज दिस लाइन? आई एम नेमिंग इट एज ए ओ बी सी. सो दिस, ये जो 2 पाई आर आपने मुझे बताया, this is talking about only ACB. This is not talking anything about AOB. So when we are talking about the perimeter, we will have to add plus 2R. Why? AO is R and this is R plus R, or you can say diameter. Okay, so this is the perimeter of this figure. I won't be calling it as a semicircle. अगर मैंने आपको सिर्फ ये पूछा कि मुझे इसका पेरीमीटर बताओ, तो आप आंसर करेंगे कि ये होता है 2 पाई आर. ठीक है. लेकिन जब मैंने यहाँ पर एक लाइन भी बना दी, तो यू विल हैव टू ऐड दिस लाइन इन द पेरीमीटर ऑल्सो, एंड दिस लाइन इज इक्वल्स टू डायमीटर, और यू कैन से ट्वाइस ऑफ द रेडियस. ठीक है. सो नाउ सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट अ क्वाड्रेंट ऑल्सो. क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट, when we are talking about a quadrant, वो क्या होता है? a figure like this, 1/4 of a circle. ठीक है. ये जो मैंने शेडेड रीजन किया है, 1/4 of a circle. अगर हम इसे नेम दे दें, this is O, this is A, this is B and this point in the middle is C. तो अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछ रहा हूं तो क्या होगा? this is radius, this is also radius, right? जैसे इस फिगर में है, this is radius, this is also radius. So when I am talking about the perimeter of this figure, that is perimeter of a quadrant, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो 2 pi r upon 4 करेंगे. ये क्या है? ACB. 2 pi r upon 4 किसके इक्वल हुआ? ACB के. ठीक है. लेकिन अब हमें इसमें OA और OB को भी ऐड करना पड़ेगा. तो OA किसके इक्वल है? रेडियस के, और OB किसके इक्वल है? रेडियस के. ठीक है. तो बेसिकली दिस इज 2 पाई आर अपॉन 4 प्लस 2r. यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 2r सब जगह आएगा. ठीक है. यहाँ पे भी प्लस डी, यहाँ पे भी आप इसको प्लस डी लिख सकते हैं. तो बेसिकली हमारा जो सर्कमफेरेंस है वो सेमी सर्कल का हाफ हो गया, क्वाड्रेंट का 1/4 हो गया, लेकिन उसके साथ आपको डायमीटर या ट्वाइस ऑफ रेडियस ऐड करना पड़ेगा जब हम पेरीमीटर की बात करें. या कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि वी आर फेंसिंग दिस एरिया. अगर उस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम सिर्फ इसको फेंस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये टर्म लेंगे, दैट इज 2 पाई आर बाय 4. लेकिन अगर उसने हमें बोला है कि हम इसको प्लस इसको सब जगह फेंसिंग कर रहे हैं, तो हमें रेडियस और रेडियस को भी कंसिडर करना पड़ेगा. जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. दिस वाज जस्ट द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थिंग, क्योंकि इस चीज में बहुत से बच्चे गलती करते हैं. जब हमें फेंसिंग का क्वेश्चन आता है और हमें पेरीमीटर बोला जाता है सेमी सर्कल या क्वाड्रेंट का, तो व्हाट वी यूजुअली कैलकुलेट इज 2 पाई आर अपॉन 2 एंड 2 पाई आर अपॉन 4. हम ये रेडियस डायमीटर्स भूल जाते हैं. तो इसीलिए इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ओनली आई एम टेलिंग यू दिस कॉन्सेप्ट. ओके. सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सेमी सर्कल, ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सेमी सर्कल एंड ऑफ अ क्वाड्रेंट. ठीक है. अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जो कि इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत ज्यादा यूज होंगे. सो प्लीज वॉच इट केयरफुली. आई एम जस्ट रबिंग दिस राइट नाउ.
सो अब हम देखेंगे, अब नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. ओके, सो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? दो सर्कल्स जिनका रेडियस सेम होता, जिनका सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस डिफरेंट होता है, राइट? सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंसेंट्रिक सर्कल्स. नाउ कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं. एक एग्जांपल, दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ स्मॉलर सर्कल. दिस इज देयर कॉमन सेंटर. ओके, रफ फिगर है. So what am I marking? I am saying that radius of this smaller circle is smaller and this bigger circle is capital R. ठीक है? Now if we are now we will be talking more about this concentric circles. If I am talking about the circumference of a smaller circle, okay, so circumference of a smaller circle will be, सर्कमफरेंस को मैं CIR लिख रहा हूं सिर्फ, ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा? 2 पाई स्मॉल r. ठीक है. सिमिलरली सर्कमफरेंस ऑफ बिगर सर्कल क्या होगा? 2 पाई कैपिटल R. ओके, अब हम बात करते हैं एरिया की. तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा? पाई स्मॉल r स्क्वायर. एंड सिमिलरली एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर. ठीक है, ये तो हो गया हमारा जनरल थिंग. अभी हम इस फिगर में इन चीजों को मार्क करेंगे. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मार्क करेंगे एरिया ऑफ, या चलो ऐसे करते हैं, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस रीजन. आई एम शेडिंग दिस रीजन विद ब्लैक लाइन्स. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रीजन, द रीजन that is between the two concentric circles. So what will I have to do? Look, area of bigger circle क्या होगा? If I am talking about area of the bigger circle, तो वो क्या होगा? Area of the bigger circle will be, let me just rub it, R and R. Okay, so area of the bigger circle will be यहाँ से ये पूरा आउटर लाइन तक. ठीक है. एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल ये अंदर वाला होगा, राइट? इसमें किसी को डाउट नहीं है? तो जो मैंने शुरू में ये ब्लैक लाइन से डिनोट किया था, ये एरिया कैसे आया? ये एरिया आएगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल. बिगर सर्कल के एरिया में से अगर मैं स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. ठीक है. अगर बड़े सर्कल के एरिया में से मैं स्मॉलर एरिया माइनस कर दूं, मतलब ये जो चेक वाला एरिया है इसको मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ दिस रीजन. कौन सा रीजन? जिसको मैं रेड चेक से बना. ठीक है, ये वाला आ जाएगा एरिया ऑफ रेड शेडेड रीजन. इसका कोई नाम नहीं होगा. ठीक है, तो बेसिकली ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या है? पाई कैपिटल R का स्क्वायर. और एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या है? पाई स्मॉल r का स्क्वायर. ठीक है, तो आप देख रहे हैं पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r एंड कैपिटल R प्लस स्मॉल r. क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस.
आप ये भी यूज कर सकते हैं एंड ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। दिस इज वी वर टॉकिंग अबाउट द कंसेंट्रिक सर्कल्स। दिस वाज द ब्लू लाइन जो दिख रही है, दिस वाज द सर्कमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल। जो दूसरी ब्लू लाइन दिख रही है, दिस वाज द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। जो ये रेड शेडेड रीजन है, दिस इज द एरिया बिटवीन द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन को हम क्या बोलेंगे, एरिया बिटवीन द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। इस चीज पर, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग फेंसिंग ऑफ द ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, रिगार्डिंग पेंटिंग ऑफ इट, रिगार्डिंग जस्ट फाइंडिंग कैलकुलेटिंग द एरिया। हम करेंगे वो क्वेश्चंस आगे, प्रैक्टिस करेंगे, बट दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट, ओके। अब हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। नाउ आई एम जस्ट रबिंग इट। Now we'll be talking about two circles. Now this is something that's not exactly given in your NCERT, but this concept is also very important. We'll be talking about two circles. अभी हमने जो पढ़े दो सर्कल्स, हमने पढ़े कंसेंट्रिक सर्कल्स, राइट। अब हम पढ़ेंगे टू सर्कल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टचिंग, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, मतलब उनकी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं या वो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका, अगर मैं फिगर बनाऊं तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। So these two circles are touching each other at this point. Let's name it as P point. This is a circle with center O. This is a circle with center O dash. ठीक है। So these two circles are touching each other externally. ये दोनों एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। तो when let me say कि ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस इज R1 और ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस इज R2, ठीक है। So can you tell me the distance between two centers? इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच में आप मुझे डिस्टेंस बता सकते हैं, दैट इज O dash. Distance between the centers of the two circle will be equal to O dash. वो कितना होगा, वो होगा R1 plus R2, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट टू यू सो दैट जब हम क्वेश्चंस करें तब आप लोगों को वो समझने में डिफिकल्टी ना हो। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज गिवन बाय R1 plus R2, that is sum of radius of both the circles. All right. So now let's talk about two circles touching each other internally. Touching internally. अब इसकी फिगर कैसे बनेगी, ठीक है। टचिंग इंटरनली का मतलब क्या है, वो एक दूसरे को अंदर ही अंदर टच करें। ये तो एक सर्कल ऐसे था, दूसरा सर्कल उसके बाहर वाले एरिया में था, तो ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब देखो, I have made a circle like this with a center O, ठीक है। Now I am making another circle, let's say like this. So these two circles are this touching at this point, और इस सर्कल का सेंटर है O dash somewhat here, okay? ये वाला जो सर्कल है, बड़े वाला सर्कल, उसका सेंटर है O, और जो छोटे वाला सर्कल है उसका सेंटर है O dash, and they are touching each other at point P. So this is what we call about touching each other internally. Okay. So अब अगर हम बात करें, now they are in the same straight line. Always remember this type of a question
the circles, the center of the circles are in the straight line. So I am writing this point as O dash in the straight line. Okay. So now when we are talking about the radius, this will be the radius of bigger circle, R1 I am naming it. Okay. And this will be the radius of the smaller circle, R2 I am naming it. So can anybody tell me distance between centers, that is again O dash. Now you have to tell me the distance between the centers, that is this distance. So if I can see, this distance is equals to what? R1, that is the radius of bigger circle, minus R2, that is the radius of smaller circle. Okay? So when we are talking about touching externally, distance between the centers is sum of the two radiuses, and when we are talking about internally, it is the difference of the radius of the two circles. Obviously difference has to be positive, therefore बिगर सर्कल के रेडियस में से स्मॉलर सर्कल का रेडियस माइनस करेंगे. अगर हम इसको उल्टा कर देंगे देन डिस्टेंस विल कम आउट टू बी नेगेटिव, व्हिच कैन नॉट बी ट्रू. ठीक है, दिस ओ डैश कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, सो दैट इज द ऑब्वियस थिंग. ऑलराइट, नाउ दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट. दिस इज, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं. वी विल सी टू देम. I hope you have understood the concept first. Okay, so अब हम एक और concept के बारे में पढ़ेंगे. That is finding the number of revolutions and distance covered by a circular object. So I am rubbing it. I hope you have noted down in your notebook. Now we have a circular object. All right. तो जब हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल व्हील्स जो हैं वो सर्कुलर इन शेप होते हैं. तो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं अबाउट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ दैट व्हील और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट. सो कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस covered by a circular object in one revolution. When we are talking about circular object, and we are talking about a circular object, वो यहाँ पर ग्राउंड को टच कर रहा है. ठीक है, टचिंग ग्राउंड. सो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे रोटेट करा और एक रेवोल्यूशन के बाद ये इस पोजीशन पे आ गया, यहां पर ग्राउंड को टच कर रहा है, टच पॉइंट. सो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज, वी आर कैलकुलेटिंग दिस डिस्टेंस ए बी. ठीक है, मैंने इसको कितनी रेवोल्यूशंस दी? 1 रेवोल्यूशन. मतलब ये ए पॉइंट जो था यहां पर भी ये ए पॉइंट ही आएगा. एक पूरी रेवोल्यूशन दे दी मैंने उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट को. तो ये मैं ए डैश लिख देता हूं क्योंकि ग्राउंड का रेफरेंस पॉइंट बदल गया है, लेकिन वही सर्कल का पॉइंट दोबारा ग्राउंड को टच कर रहा है. तो उसने उतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया. ये वाला पॉइंट मैंने मार्क करा. आई हैव टेकन दिस पॉइंट ऑन द सर्कल. मैंने सर्कुलर ऑब्जेक्ट को घुमाया और जब ये वाला पॉइंट वापस से ग्राउंड के कांटेक्ट में आया तब वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो था उसने ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है,
बेसिकली किसके इक्वल हुआ, जब ये वाला सारा जो एरिया, ये जो पाथ है सर्कुलर ऑब्जेक्ट की, जो सर्कुलर लेंथ है वो पूरी रोटेट करी दोबारा, तो उसने इतना डिस्टेंस अपने इस सर्कुलर लेंथ से कवर करा. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस a dash will be equal to the circumference of the object. ठीक है. So when we are talking about distance covered by a circular object in one revolution, then that will be equal to the circumference of the circle. ठीक है. You have to memorize it. समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है. नहीं आ रहा है तो मेमोराइज भी करना है, इस चीज को याद रखना है. तो इस फॉर्मूले, इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हो, दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बार बार आप लोग भूल भी जाते हैं. इस कॉन्सेप्ट से हम एक और कॉन्सेप्ट को क्रिएट होता है, दैट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. Made by circular object for covering a distance. Now I am saying कि एक ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और इसने 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करा. सपोज 10 मीटर्स डिस्टेंस इसने कवर करा 1 मिनट में, तो इसने कितनी रेवोल्यूशंस ली, तो इसने कितनी रेवोल्यूशंस में ये काम करा वो मुझे पता करना है. तो इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे हम. कैसे निकालेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 revolution is equal to 2 pi r. ठीक है. तो लेट टोटल रेवोल्यूशंस कितनी ली, x ले लेते हैं. ठीक है. एक रेवोल्यूशन में 2 pi r डिस्टेंस कवर करा, तो डिस्टेंस कवर्ड इन x रेवोल्यूशंस कितना होगा, x इंटू 2 pi r. ठीक है. 1 रेवोल्यूशन में 2 pi r डिस्टेंस कवर करा, तो x रेवोल्यूशंस में कितना करा, x इंटू 2 pi r. अब हमें ये डिस्टेंस कवर्ड गिवन है. सपोज ये गिवन है हमें d, सो d इज इक्वल्स टू x इंटू 2 pi r. तो अब अगर हमें x निकालना है तो x विल बी इक्वल्स टू d अपॉन 2 pi r. ठीक है. तो बेसिकली इस कंसेप्ट से हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और हम किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का रेडियस या डायमीटर भी निकाल सकते हैं. बेसिकली 3 वैल्यूज है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, डिस्टेंस और रेडियस. तीनों में से हमें कोई भी 2 वैल्यू दी होंगी तो हम 3rd वैल्यू निकाल सकते हैं. ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं. और अगर आपका स्कूल का एग्जाम है तो ऐसा, और उस स्कूल के एग्जाम में आपका ये वाला चैप्टर आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें आपसे ये क्वेश्चन ना पूछा जाए. तो इस कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव आए चाहे वो ऑब्जेक्टिव आए. तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं. ठीक है. हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना उसका सर्कमफेरेंस है. ठीक है. अगर एक रेवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो x रेवोल्यूशन या सपोज 10 रेवोल्यूशन में कितना करेगा, x इंटू वो. ठीक है. सिंपल यूनिटरी मेथड. तो अब हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन x रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू x इंटू 2 pi r. तो अब एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया, d इज इक्वल्स टू x इंटू 2 pi r. ठीक है. वेयर d इज द डिस्टेंस कवर्ड इन x रेवोल्यूशंस, x is the number of revolutions and r is the radius of the circular object. अब इसमें से हमें कोई भी 2 वैल्यूज अगर दी हुई हैं तो हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं. डिस्टेंस और रेवोल्यूशंस दिए हुए हैं तो रेडियस निकाल लेंगे,
रेडियस और डिस्टेंस दिया हुआ है तो रेवोल्यूशंस निकाल लेंगे, और रेवोल्यूशंस और रेडियस दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमें बस ध्यान इस बात का रखना है कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर किसी में भी दिया हो सकता है। जो यूनिट डिस्टेंस की है वही यूनिट रेडियस की होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की तो कोई यूनिट होगी नहीं, ठीक है। तो अब हम जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं अभी, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्वाड्रेंट, उसके बाद हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स पढ़ा, उसके बाद हमने सर्कल्स टचिंग इंटरनली एक्सटर्नली पढ़ा, और उसके बाद हमने रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा। इन सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैं आपको एक एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट्स आपको और ज्यादा क्लियर होंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी करेंगे, ओके। सो नाउ हियर आर द फर्स्ट टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल का सर्कमफरेंस क्या है 22 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलते हैं, लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू r सेंटीमीटर्स। यहाँ सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे भी सेंटीमीटर की ही बात करेंगे। तो सर्कमफरेंस क्या होता है सर्कल का 2 पाई r। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट 22 सेंटीमीटर्स। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई r। जब हमें क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी हुई है पाई की, तो वी विल टेक इट एज 22/7। सो 2 into 22/7 into r, which is not known to us, is equals to 22. So this implies r will be equals to 22 into 7 upon 2 into 22। हमेशा याद रखना जो ये वाले क्वेश्चंस हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम इसको 44/7 नहीं लिखेंगे। हम सब चीजों को एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाइज एंड लेफ्ट एंड राइट पे शिफ्ट करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में जब हमें फाइनल आंसर निकालना है तभी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा 22/22 कैंसिल, तो r इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। अभी भी हम इसको 3.5 नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे, देखो हमें क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमें रेडियस निकालने को नहीं बोला गया है, तो हम एरिया निकालेंगे, हम रेडियस नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने पढ़ा था क्या होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब 2 पाई r²/4 ये होगा, और सॉरी पाई r²/4 ये होगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r², मतलब 7/2 इंटू 7/2, ये r² हो गया, और अपॉन में 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 1/4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 7 से 7 कैंसिल, 1 2 से ये कैंसिल होगा 11, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया 77/8। यूनिट क्या होगी पाई r²/4, तो मतलब r का स्क्वायर हो रहा है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 77 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो क्या आना चाहिए, ये आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो हम बिल्कुल लास्ट में उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम 3.5 करते हैं, फिर 3.5 का स्क्वायर करते हैं, फिर उसे 14 से डिवाइड करते हैं, 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, टीडीएस कैलकुलेशन होती, थोड़े बहुत कैंसिल हो गए। 7 into 11 डायरेक्टली पता है 77 होता है, 4 into 2 8, 77/8 करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस को हमें इजी बनाना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर मतलब डी जिससे आप एंगल्स बनाते हैं,
तो अगर हम इसकी फिगर भी बनाएंगे साथ में, प्रोट्रैक्टर की फिगर क्या होती है, ऐसे, ठीक है। सेमी सर्कल होता है, ये सेमी सर्कल है, दिस विल बी द रेडियस आर। तो अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या होता है, ये वाला एरिया, सर्कुलर एरिया, तो 2 पाई आर अपॉन 2, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कुलर एरिया, प्लस 2r, या डायमीटर भी बोल सकते हैं हम इधर प्लस 2r ले लेते हैं। डायमीटर लेना चाहे डायमीटर ले लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर गिवन है हमें, दिस इज इक्वल्स टू 108 सेंटीमीटर्स। हमें इसका डायमीटर निकालना है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो इधर से हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, इधर क्या वेरिएबल है, केवल r एक वेरिएबल है। रेडियस निकाल लो तो डायमीटर भी आ जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, तो ये और ये कैंसिल हो गया। दिस इज पाई r प्लस 2r इज इक्वल्स टू 108, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7r प्लस 2r इज इक्वल्स टू 108। एलसीएम लेंगे, 22r प्लस 14r/7 इज इक्वल्स टू 108, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 22 प्लस 14 विल बी 36। So 36r is equals to 108 into 7, ठीक है। तो r will be equals to 108 into 7 upon 36, ठीक है, ये आ गया। तो अब आप देखें, अगर 36 into 3 अगर आप करेंगे तो you'll find it as 108, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। जरूरी नहीं है आपको 36 से ही कैंसिल करना है, 9 से कर लीजिए, फिर 4 से कर लीजिए, एक ही बात आएगी। सो r इज इक्वल्स टू 7 into 3 21 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब r हमारे पास आ गया है, तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर विल बी इक्वल्स टू 2 into 21 सेंटीमीटर्स, दैट इज 42 सेंटीमीटर्स। तो ये एक हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें और क्या निकालना है, एरिया ऑफ दिस प्रोट्रैक्टर। तो एरिया क्या होता है प्रोट्रैक्टर का, एरिया क्या होगा, एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r²/2, राइट। तो पाई r²/2 हम करेंगे, तो ये क्या आएगा, पाई इज 22/7 इंटू r², 21 into 21 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये इधर कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास क्या आया, यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेम्बर, यूनिट के मार्क्स होते हैं, यूनिट लिखने के मार्क्स होते हैं। अगर आप ये सेंटीमीटर स्क्वायर्स नहीं लिखेंगे तो एटलीस्ट हाफ मार्क्स कटेगा और मैक्सिमम 1 मार्क कटेगा, ओके। सो ये क्या हो गया, 11 into 3 into 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है 21 into 33, राइट। 21 into 33 आप कैलकुलेट करें, 3636, तो दिस इज 693, ठीक है। तो ये एरिया आ गया हमारा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले दो कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े थे, उन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे ये एक एक हमने क्वेश्चन करा है। अब हम कंसेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दीज आर द 2 क्वेश्चंस, दे आर बेस्ड ऑन कंसेंट्रिक सर्कल्स। किस तरह से वो हम चेक करते हैं। अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो जब हम रिंग की बात करते हैं तो हम 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात करते हैं। तो एक रेस ट्रैक दिया हुआ है which is of the form of a ring, okay। ये 2 concentric circles बनाए हैं, this is the center O। रफ बनाए हैं इसीलिए बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। so whose inner circumference is 352 meters, ठीक, okay।
सो ये हमें बोल रहा है इनर सर्कमफ्रेंस। इनर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 252 मीटर्स। तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? ये इस अंदर वाले सर्कल की बाउंड्री की बात कर रहा है। इनर सर्कमफ्रेंस तो यही होगा, ये अंदर वाले सर्कल, छोटे सर्कल की बाउंड्री, ठीक है। और आउटर सर्कमफ्रेंस ये हमें क्या बोल रहा है? आउटर सर्कमफ्रेंस ये हमें बोल रहा है 396 मीटर्स। तो ये आउटर सर्कमफ्रेंस मतलब ये आउटर सर्कल की बाउंड्री। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री, एरिया का मतलब होता है इसके अंदर का हिस्सा, ठीक है। हमसे क्या पूछी गई है? विड्थ ऑफ द ट्रैक। विड्थ का मतलब क्या है? ये डिस्टेंस, ये इस ट्रैक की विड्थ होगी, ये सब जगह से इक्वल होगी क्योंकि दो सर्कल्स हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो विड्थ ऑफ द ट्रैक। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, अगर ये कैपिटल आर है इसका बड़े वाले सर्कल का रेडियस, और ये स्मॉल आर है इसके छोटे वाले सर्कल का रेडियस, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज जिसको हम विड्थ बोल रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा? आर माइनस आर के, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? हमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना है और हमें छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकालना है। अगर वो निकल गया तो दोनों को माइनस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी? विड्थ आ जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे? देखो, इनर सर्कमफ्रेंस हमें 252 मीटर दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होगा? इनर सर्कमफ्रेंस। रेडियस हमने क्या लिया है? स्मॉल आर, तो ये 2 पाई स्मॉल आर के इक्वल होगा। इसको हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, पहले उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूं 252 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। स्मॉल आर लिखा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर करते हैं स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? 252 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये होगा 126, ओके। अब 126, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूं, ये 252 नहीं है, दिस इज 352, ठीक है। 352 है, मैंने गलत देखा, दिस इज 352। तो ये क्या होगा? 2 से डिवाइड करा तो 176, ठीक है, 176। अब मैं देख रहा हूं कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से करेंगे तो ये 11 1 से 11, 11 6 से 66, ये 2 बचा, ये फिर कैंसिल हो रहा है, तो 8 इंटू 7, तो स्मॉल आर आया मेरा 8 इंटू 7 दैट इज 56 मीटर्स, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आउटर सर्कल के लिए निकालता हूं, तो मुझे पता है आउटर सर्कमफ्रेंस है मेरा 2 पाई कैपिटल आर जो कि है 396 मीटर्स, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 396, तो कैपिटल आर किसके इक्वल होगा? 396 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। सबसे पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 198, 11 से जा रहा है ये, 11 1 ज़ा 18, ये 2 हो गया 9, तो ये आएगा 63 मीटर्स, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसकी विड्थ निकालूंगा अगर, तो विड्थ क्या होगी? विड्थ ऑफ ट्रैक क्या होगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 63 माइनस 56 मीटर्स इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स। ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ आया? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जगह थोड़ी कंजस्टेड थी लेकिन समझ आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ उस चीज को, बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके।
अब अगर मैं इसमें एक एडिशन करूं अपनी तरफ से, अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड मी द एरिया ऑफ ट्रैक, ये जो ट्रैक है इसका एरिया मैंने आपसे पूछ लिया है, तो आप क्या करेंगे, वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आर स्क्वायर में आप 56 का स्क्वायर और 63 का स्क्वायर मत करने बैठिए, इसका सिंपल आंसर मैंने उस वक्त भी बताया था, कैपिटल आर प्लस आर और कैपिटल आर माइनस आर। तो 22/7 इंटू 63 प्लस 56 एंड 63 माइनस 56, 63 माइनस 56 7 होगा, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको कैलकुलेशन जो करनी है आपको करनी है 22 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस 56, तो 63 और 56 को ऐड करिए 119 और इसको 22 से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास एरिया ऑफ द ट्रैक भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल्स में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक तरह से हमने सिंपली वो अप्लाई कर दिया। और कैलकुलेशन, इसमें सारा गेम जो है इस चैप्टर में कैलकुलेशन का है। हमें देखने में लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसे कैलकुलेट मत करिए, एंड तक छोड़ दीजिए, बहुत आसान है। 63 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर करने बैठेंगे तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इनर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 222 मीटर्स। मतलब यही फिगर को हम ले रहे हैं, फिगर चेंज नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमें ज्यादा जगह मिल जाएगी। इनर सर्कमफरेंस है सर्कुलर ट्रैक का, वो है 222 मीटर्स। तो इनर सर्कमफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 220 मीटर्स। ठीक है, तो इसमें जो ये अंदर वाला सर्कल है इसकी बाउंड्री जिसका रेडियस आर है, स्मॉल आर है, वो है 222 मीटर्स। अब इसने क्या बोला है, द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड एवरीवेयर। हर जगह से जो ट्रैक है वो 7 मीटर वाइड है। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए नहीं हुए थे, यहाँ तो हमें रिंग वर्ड यूज किया हुआ था, तो रिंग का मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है। यहाँ हमें कंसेंट्रिक सर्कल दिया नहीं हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आ गया कि एक इनर ट्रैक है जो कि सर्कुलर शेप का है, और आउटर ट्रैक जो है वो भी सर्कुलर का होगा, क्योंकि उसकी विड्थ है 7 मीटर वाइड एवरीवेयर, विड्थ कहीं भी कम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप फेंस अराउंड द सर्कल एट ₹2 पर मीटर। ये जो सर्कल है इसके अराउंड हमें फेंसिंग करनी है, और उस फेंसिंग की कॉस्ट क्या है, ₹2 पर मीटर। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें आउटर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हमें आउटर सर्कमफ्रेंस अगर हमारा निकल जाएगा तो हमारी कॉस्ट भी निकल जाएगी। अब आउटर सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल आर। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें इनर सर्कमफ्रेंस पता है तो हम स्मॉल आर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 220। तो स्मॉल आर आ जाएगा 220 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ये हो गया 10 5, तो ये आ गया हमारा 35 मीटर्स। ठीक है, स्मॉल आर आ गया हमारा 35 मीटर्स। अब देखो कैपिटल आर क्या होगा, इसको रब करते हैं, रेडियस ऑफ outer circle, capital R will be small r plus 7 meters। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें सर्कुलर ट्रैक की विड्थ जो है वो 7 दी हुई है, मतलब हमें ये डिस्टेंस इधर गिवन है 7 मीटर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला इस क्वेश्चन में हमारा गिवन है। तो हमारा कैपिटल आर क्या आ जाएगा, हमारा कैपिटल आर आ जाएगा 35 प्लस 7 मीटर्स इज इक्वल्स टू 42 मीटर्स। ठीक है,
कैपिटल आर हमारा 42 आ गया। अब हमारा कैपिटल आर आ गया तो हमारा आउटर सर्कमफ्रेंस भी आ जाएगा विच इज 2 पाई कैपिटल आर। तो ये कितना होगा 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना है 42, कैंसिल हुआ 7 6 42। तो हमें क्या निकालना है 22 इंटू 12। ठीक है 22 इंटू 12 कितना होगा 220 प्लस 44 264 मीटर इसकी यूनिट होगी। सर्कमफ्रेंस की यूनिट हमेशा मीटर सेंटीमीटर में आएगी और एरिया की यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। ठीक है तो आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया 264 मीटर। अब कॉस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी करे थे, कॉस्ट निकालने वाले। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर कितनी है ₹2। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 264 मीटर्स कितनी होगी ₹2 इंटू 264 मतलब ₹528। ठीक है तो ये हमारी आ गई फाइनल कॉस्ट। ओके कॉस्ट पर मीटर दी हुई है, हमने टोटल मीटर निकाल लिया कितने पर फेंसिंग करनी है और हमें पर मीटर की कॉस्ट को उससे मल्टीप्लाई करना। ओके अब देखो अगर इस क्वेश्चन में भी मैं ऐड करूं कि फाइंड मी द एरिया ऑफ ट्रैक, तो आई होप अब आप सब लोग फाइंड कर लेंगे। वो क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो 22/7 कैपिटल आर कितना है 42 प्लस 35 एंड 42 माइनस 35। 42 माइनस 35 जो है वो 7 के इक्वल आएगा, कैंसिल हो गया। 42 प्लस 35 कर लेंगे हम 87। तो 22 इंटू 87 मीटर स्क्वायर। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक भी आ जाएगा। ठीक है सो क्वेश्चन आसान है, गलती होने के चांसेस सिर्फ कैलकुलेशन में है, तो बहुत ध्यान से समझ के करना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 2 सर्कल्स दैट आर टचिंग ईच अदर इंटरनली। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। दिस इज अ बिगर सर्कल विथ सेंटर O and this is a smaller circle which is touching the bigger circle and this has a center O dash, right? So we have this as capital R and this as small r, and this is the distance between two centers that is given to be 6 centimeter in the question. ठीक है अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। हमें दिया हुआ है दैट सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 circles is 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो हम एक एक करके लिखते हैं। एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, आर की वैल्यू हमें नहीं पता है। ऐसे ही एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है दैट सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब इन दोनों का सम, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116 पाई। ठीक है तो अब आप देख रहे हैं पाई कॉमन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116 पाई। ये पाई और ये पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों प्रोडक्ट में है।
तो हमारे पास इक्वेशन आ गई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116. लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. ऑल्सो हमें क्या पता है that when two circles are touching internally, then distance between their centers is given by radius of bigger circle minus radius of smaller circle, which is equals to 6 centimeter. ठीक है. This capital R minus small r will be equals to your 6 centimeter. तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं that capital R is equals to 6 plus small r. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. दो इक्वेशंस हैं. इस टाइप की इक्वेशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में सॉल्व करना सीखा था. सेम कॉन्सेप्ट से हम इनको सॉल्व करेंगे और कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यूज निकालेंगे. ठीक है. हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1. तो कैपिटल आर की जगह हम 6 प्लस स्मॉल आर लिखेंगे. 6 प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160. ठीक है. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू आर मतलब 12r. a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 116. ठीक है. तो ये क्या होगा 2r square plus 12r minus 36 minus 116 will be minus 80 is equals to 0. 116 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 कॉमन निकल आएगा. 2 को कॉमन ले लेते हैं. r square plus 6r minus 40 is equals to 0. ठीक है. तो ये क्या हो गया, बेसिकली हमारी इक्वेशन आ गई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0. क्योंकि ये 2 यहाँ पर 0/2 हो जाएगा तो वो 0 ही रहेगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे इस इक्वेशन में. तो सम आना चाहिए +6 और प्रोडक्ट आना चाहिए -40. तो ऐसे दो नंबर्स कौन से आएंगे, आई थिंक +10 एंड -4. तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 इज इक्वल टू 0. r प्लस 10 माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो r प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड r माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो r की वैल्यू आ रही है -10 एंड r इज इक्वल टू +4. तो जो हमारा रेडियस है r क्या है, हमारा रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. कैन इट बी नेगेटिव? नो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर वी विल नेग्लेक्ट इट. ठीक है. तो हमारा रेडियस स्मॉल r कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हम इस 4 सेंटीमीटर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और कैपिटल R निकाल लेंगे. वो कैसे आएगा, कैपिटल R इज इक्वल्स टू 6 प्लस स्मॉल r दैट इज 4 सेंटीमीटर्स. तो ये आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो स्मॉल r हमारा आया 4 सेंटीमीटर्स और कैपिटल R हमारा आया 10 सेंटीमीटर्स, जो कि आंसर हो गया. हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स. तो स्मॉलर सर्कल का रेडियाई इज 4 सेंटीमीटर एंड बिगर सर्कल का रेडियाई इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है. कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे गलत हो सकता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दैट इज -b प्लस -√d/2a, या मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं. ठीक है. विच एवर वे यू फाइंड इजी, उससे आप r की वैल्यू निकालिए और स्मॉल r की और कैपिटल R की वैल्यू. ठीक है. अब 2 सर्कल्स टच इंटरनली था, ये 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली का भी सेम मेथड है, बस यहाँ r माइनस r की जगह r प्लस r हो जाएगा. वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दूंगा, रादर अभी कराने के.
ठीक है, अब हम करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि एक बाइसिकल है, उसका व्हील ऑब्वियसली सर्कुलर शेप का होगा, 5000 रेवोल्यूशंस में 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमें डायमीटर निकालना है उस व्हील का, डायमीटर या रेडियस कुछ भी निकालिए। तो हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, दैट डिस्टेंस जो एक व्हील या सर्कुलर ऑब्जेक्ट कवर करता है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मतलब x जो था, इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर थिंग। इस केस में वो सर्कुलर थिंग क्या है, व्हील है। डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पर हमें दिया हुआ है 11 किलोमीटर्स। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें दी हुई है 5000 रेवोल्यूशंस। तो हम सर्कमफरेंस निकाल लेंगे, और अगर हमारा सर्कमफरेंस आ गया तो सर्कमफरेंस से हम रेडियस या डायमीटर कुछ भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले सर्कमफरेंस निकालते हैं। 11 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5000 इंटू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस डायरेक्ट 2 पाई आर है, तो इधर से ही हम सीधा रेडियस या हम कहें 2r निकाल लेंगे। ठीक है, तो 11 अपॉन 5000 विल बी इक्वल्स टू योर पाई इंटू 2r, या 2r को मैं सीधा डायमीटर ही लिख देता हूँ क्योंकि हमें डायमीटर ही निकालना, और पाई की भी वैल्यू डाल देते हैं 22/7। ठीक है, अब ये जो हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है किलोमीटर्स में, तो 11 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 5000, दिस विल बी इक्वल्स टू अवर डायमीटर, और इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने किलोमीटर्स लिया था। ठीक है, तो डायमीटर इज इक्वल, ये 2 हो गया, 7 अपॉन 5000 इंटू 2, 10,000 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इसको अगर हम इसी में भी रहने दे सकते हैं, मतलब 0.0007 किलोमीटर्स, या इट्स बेटर कि हम इसे सेंटीमीटर्स या मीटर्स में कन्वर्ट कर लें। तो अगर हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अपॉन 10,000 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा 1000। ठीक है, अब ये मीटर हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 0.7 मीटर्स। तो डायमीटर इज 0.7 मीटर्स, या हम इसे इंटू 100 करके 70 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द व्हील वाज 0.7 मीटर या 70 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो जब हमें ये फॉर्मूला पता है अगर, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। अब हमें दोबारा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये डिराइव नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेशन हमने इसकी पहले सीख ली है। ओके, लेकिन जब आप पेपर में करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट, अभी तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके करा दिया है, बट आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। किस तरह से, दैट डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, लेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बी x, तो डिस्टेंस कवर्ड इन x रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू x इंटू 2 पाई आर। तो ये हो गया डिस्टेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू सर्कमफरेंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, वो करते हैं। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार पेपर में भी पूछा जाता है, या उसमें कुछ ट्विस्ट डाल के पूछ देता है। तो कंसेप्ट समझना है हमें। वैल्यूज हमें कोई 2 दी होंगी, हमें थर्ड निकालनी है। ठीक है, जैसे इधर डिस्टेंस और रेवोल्यूशन दिया हुआ था, रेडियस या डायमीटर निकालना था। वैल्यूज हमें हमेशा कोई 2 वैल्यूज दी होगी, हमें उन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है बस। ठीक है, सो ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको हम डिस्कस करते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डायमीटर
ऑफ व्हील, व्हील क्या है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, दैट इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस एक व्हील कवर करेगा वही डिस्टेंस चारों व्हील कवर करेंगे। तो इसमें हमें कोई डिवाइडेड बाय 4 या मल्टीप्लाई बाय 4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जो 4 व्हील के लिए चीज हो रही है वो एक, अगर हम एक व्हील के लिए निकाल लेंगे तो चारों व्हील के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि एक व्हील ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस चला है और दूसरे व्हील ने हाफ किलोमीटर चला है या 2 किलोमीटर चला है, नहीं, पहले ने 1 किलोमीटर चला है तो दूसरे ने भी 1 किलोमीटर, तीसरे ने भी 1 किलोमीटर। तो उस चीज से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस। तो मतलब जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेवोल्यूशंस इनटू सर्कमफरेंस, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें रेवोल्यूशंस निकालनी है, क्योंकि यहाँ लिखा है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस। सर्कमफरेंस हम देख पा रहे हैं हमें गिवन है, कैसे गिवन है, अगर डायमीटर ऑफ द व्हील गिवन है तो मतलब हमें सर्कमफरेंस गिवन है, डायमीटर या रेडियस कुछ भी हो, सर्कमफरेंस गिवन है। तो अब हमें अगर डिस्टेंस पता हो तो हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आगे वाला डाटा हमें दिया गया है उसमें हमें डिस्टेंस के बारे में दिया गया है, लेकिन वो इनडायरेक्टली फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्टली फॉर्म में नहीं। क्या दिया हुआ है कि कितने रेवोल्यूशंस व्हील लेगा 10 मिनट में अगर स्पीड ऑफ द कार है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर पर आवर। इस 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर्स। 1 घंटे में कार ने या फिर हम कहें व्हील्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 66 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 इंटू 1 विल गिव यू द डिस्टेंस, दैट इज स्पीड इंटू टाइम। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। हम यहाँ 60 मिनट्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जो डाटा दिया गया है वो 10 मिनट्स की टर्म में दिया गया है। ठीक है, तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट्स निकाल सकते हैं हम। क्या होगा, 66 अपॉन 60 इंटू 10, यूनिटरी मेथड लगाया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 66 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 मिनट विल बी 66 अपॉन 60 और 10 मिनट्स विल बी इंटू 10 और यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ यूनिटरी मेथड लगाया। अब इसको हम कर सकते हैं, ये 6 ये 11, तो ये आ गया हमारा 11 किलोमीटर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायमीटर ऑफ द व्हील जो दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर में है और डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, तो हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें या तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या इसे सेंटीमीटर्स में। तो इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्या होगा, 11 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। 11 इंटू 1000 करा, मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो 100 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये हमारा क्या आ गया है, दिस इज अवर डिस्टेंस। तो अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया, सॉरी हाँ, अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, सर्कमफरेंस आ गया है, तो हम रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं। जस्ट इक्वेट, क्या करेंगे, 11 इंटू 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू x, रेवोल्यूशंस को x ले लिया, इंटू 2 नहीं लिखते, पाई डी, क्योंकि हमें डायमीटर दिया हुआ है। 2 पाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर को पाई इंटू डायमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें बेसिकली इसे सॉल्व करना है। हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले में इसे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये जो मेथड है ये रफ मेथड है, आपको अपने आंसर शीट में से एरोज नहीं बनाने हैं,
ये आपको समझाने के लिए है। तो डिस्टेंस आ गया, तो यू विल राइट द स्टेटमेंट दैट वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे मैंने x डायरेक्टली लिख दिया, आप यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट लेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बी x। ओके, अब सॉल्व कर देते हैं। 11 into 1000 into 100 is equals to x into 22/7 into diameter which is 80। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 11 into 1000 into 100। अब देख रहे हैं मैं into 1000 into 100 लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। into 7/22 into 80। ठीक है, तो 10 से 10 यहाँ कैंसिल हुआ। 11 2s are 22, ये 2 इस 10 से गया, यहाँ 5 बचा। ठीक है, तो अब इधर कुछ ज्यादा नहीं होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 4 से इसे कर रहा हूँ, 4 2s are, और अब मैं इस 1000 को कर रहा हूँ, ये होगा 250। ठीक है, अब इसे फिर से करेंगे, 2s are, ये गया 125। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 125 into 5 into 7। यूनिट कोई नहीं होगी क्योंकि ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 125 into 5 करेंगे 625, और 625 into 7 करेंगे, फिर 7 5 से 35। तो हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना आया, 4375 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो हमने इसीलिए इसको अलग अलग रखा। कैंसिलेशंस में आसानी होती है, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पता होने से हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पहले बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, जैसा कि मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ अब हम एक ये दूसरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। इसमें वो क्या कह रहा है कि एक वायर है जिसको हमने सर्कल की फॉर्म में लूप किया हुआ है, मतलब हमने उसको सर्कुलर शेप में बेंड किया हुआ है। तो बेसिकली एक ये वायर है AB। ठीक है, इसको हमने इस शेप में बेंड किया हुआ है सच दैट ये AB पॉइंट जो है वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ द वायर होगी L, वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, मतलब इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। ठीक है, हमने इस वायर की लेंथ को एक सर्कुलर फॉर्म में दे दिया, तो लेंथ ऑफ द वायर तो चेंज नहीं हुई, उसने बस अपनी शेप चेंज कर ली कि वो एक स्ट्रेट लाइन से एक सर्कुलर फॉर्म में शेप हो गई। तो अगर हम सर्कुलर फॉर्म में उसकी लेंथ की बात करेंगे तो वो 2πr होगा। तो ये 2πr और ये L आपस में इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब वो क्या कह रहा है कि हमने इसको रीशेप कर दिया और हमने इस चीज को कन्वर्ट कर दिया एक स्क्वायर में। उसी वायर से हमने स्क्वायर बना दिया, तो लेंथ ऑफ द वायर तो अभी भी चेंज नहीं हुई, बस क्या चेंज हो गया, शेप। तो इस स्क्वायर का लेंथ क्या होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो कि होता है 4 into a, जहां पर a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये भी किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली वायर की शेप चेंज हो रही है लेकिन उसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही। हाँ, इस वायर के अंदर जो एरिया है, वायर का एरिया नहीं, वायर के अंदर जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। इस केस में वो ये सर्कुलर एरिया था और इस केस में वो एक स्क्वायर फॉर्म का एरिया है। तो यस, जो वायर शेप के अंदर का एरिया है वो चेंज हो रहा है, लेकिन वायर की लेंथ चेंज नहीं हो रही, पेरीमीटर चेंज नहीं हो रहा, सर्कमफरेंस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब वायर एक सर्कुलर फॉर्म में थी तो उसका रेडियस था 28 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी हुई, अगर हम निकाले लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ द वायर कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर सेंटीमीटर्स, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 28 सेंटीमीटर्स। आप इसे क्रॉस कर सकते हैं, ये 4 कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, क्यों, क्योंकि ये हमें फाइनल आंसर नहीं चाहिए। हमें लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है, नहीं, हमें क्या निकालनी है, साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ द वायर दैट इज एल। अब हम क्या, अब जो हमें निकालना है कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए सेंटीमीटर, हमने उसे ए ले लिया, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है इसीलिए हमने उसे ए सेंटीमीटर ले लिया। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था, दैट लेंथ ऑफ द वायर should be equal to 4 times the side of the square, that is the perimeter of the square। तो उसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे according to question 4a should be equals to length of the wire that is 2 into 22/7 into 28। ठीक है, तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा डायरेक्टली 2 into 22/7 into 28 डिवाइडेड बाय 4, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 से 28 और ये 28 पूरा कैंसिल हो गया, कैलकुलेशन और आसान हो गई। A is equals to 44 centimeters, so the side of the square will be 44 centimeters। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैंसिल आउट क्यों नहीं करे थे, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पर और ज्यादा कैंसिलेशन हो जाएगी, कैलकुलेशन डायरेक्ट आ जाएगी, तो यहाँ पर ऊपर कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं थी, तो आई जस्ट सेव्ड माय टाइम। ओके, इसीलिए मैं कहता हूँ जो चीज निकालनी है डायरेक्टली वहीं पर कैलकुलेट। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे। इस सभी टॉपिक में हमने अपनी एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीटली कवर कर लिया है। आई वुड लाइक टू आप उसके सारे क्वेश्चंस अपने आप अटेम्प्ट भी करें। अगर आपको डाउट होगा देन आई विल टेल यू अगेन, बट जितना हमने यहाँ पर करा है उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन से कुछ एक्स्ट्रा ही करा है। अब आप वो क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। और अभी जो हमने करा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में, दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर ओनली। अभी इसमें और बहुत कुछ, ठीक है, सो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ऑलराइट, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज दृशा कंसेप्चुअल क्लासेस ऑन YouTube। थैंक यू।